Hello, my dear students, welcome to my video. As you have seen the thumbnail, so this is a part of Indian democracy. Today we are going to discuss about the notes. Okay, in this video, I am going to use only two languages, that is either in English or in Hindi, because most of the non-Assamese student has messaged me, they sir, kindly will you able to make the whole video in English or in Hindi. So for them, I'm accepting that I will make the further video which is going to come later on, and this video also going to be made in English as well as in Hindi. Okay, in between I will use Assamese for the Assamese students so that they will get it in a more brief way, in a more easy way. Okay, so let me start. So this will be the notes of Indian democracy. Most of the notes I provide are mostly in points. Why? Because see, you have to study in points, because you can't accept any, what you can say, or omit any kind of paragraph, because who knows what comes, because all the thing has been changed. Earlier SEBA examination and the examination which is conducting last 2 in 3 years they are conducting, it's totally, the pattern of exam was totally different. So it is better to study each and every point. Okay, I will try to maximize, I will try to elaborate the point if possible, if times favor me, so I will elaborate. Okay. Oh, and those students who have not seen my earlier video, explanation of Indian democracy, go through that video so that you will be able to understand the notes in a proper way, in a better manner. Okay, so let me start the first point. So Indian democracy, the first point is India was under the British subjugation for nearly 2 centuries, that is 1757 to 1947. मतलब क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो 1757 और 1947 के बीच इंडिया कहाँ किसके अंदर थे, ब्रिटिश के अंदर थे, और बहुत लॉन्गर पीरियड है ये, 2 century, almost 2 century. Okay, so on 15 August 1947 India attained freedom and stood as the biggest democratic country in the world. तो 15 अगस्त 1947 को कई मशक्कत के बाद इंडिया को फ्रीडम मिला, इंडिया गॉट फ्रीडम एंड इट बिकम वन ऑफ द डेमोक्रेटिक लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक, और यू कैन से बिगेस्ट डेमोक्रेटिक country in the world, and still we are one of the largest biggest democratic country in the world. Okay, remember that point. A constitution is very essential for an independent and democratic country, because constitution and democracy are complementary to each other. ठीक है, आज के जमाने में भी और पहले में भी अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो कॉन्स्टिट्यूशन अनिवार्य है. दैट मींस ए कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री. इफ इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री यू मस्ट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन. सो दे आर कम्प्लीमेंट्री, में किसी को छोड़ नहीं सकते हैं. मतलब डेमोक्रेसी है तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है. दैट मीन्स द थिंग, दैट मीन्स दे आर कम्प्लीमेंट्री, दे इज टू हेल्प ईच अदर. सो फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन इज कंपल्सरी, यू कैन से लाइक दैट. ओके, There cannot be a true democratic state without having a constitution of its own. मैंने जो बोला, कोई भी ट्रू डेमोक्रेटिक नहीं बन सकता है जब तक उस देश में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. ठीक है ना. इन द जनरल इलेक्शन held in July 1945 in England, the Labour Party came to power and the new government decided to declare independence to India. याद रखना. सो सबसे जो सिंपैथेटिक पार्टी है जो वो है लेबर पार्टी, क्योंकि इंग्लैंड में जब लेबर पार्टी जीता था जुलाई 1945 को, तो उन्होंने ही इंडिया को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया था, बिकॉज दे आर सिंपैथेटिक, दे आर सिंपैथेटिक, दे have a favorable, what you can say, friendly relationship with Indians. So that is why this party had declared India as an independent country. Hope you have understood up to this. Okay, accordingly the Labour Party government of England felt the utmost necessity of the constitution for the new democratic state, that is India. So इसी के वजह से लेबर पार्टी ने सोचा कि अब तो इंडिया एक नया कंट्री है, नया डेमोक्रेटिक कंट्री है, बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री, तो इसको डेमोक्रेटिक सेटअप के बारे में ज्यादा पता नहीं होगा. दैट मींस इट डजंट नो टू मच अबाउट or nor have an experience to how to run a country. So that is why the British government sent the cabinet mission to India in March 1947. तो उन्होंने क्या भेज दिया, कैबिनेट मिशन भेज दिया. अब तुम पूछ सकते हो सर क्या कैबिनेट मिशन क्या है, इनका काम क्या है. तो कैबिनेट मिशन क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर से 3 कैबिनेट मिनिस्टर जो इंडिया में भेजा गया था उस समय. क्यों भेजा गया था कि एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाए जिससे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा सके भारत में, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा सके भारत में. ठीक है ना. उस समय तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था. और एक बात याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, बिकॉज जैसा हमारा देश है तो कॉन्स्टिट्यूशन अनिवार्य है, क्योंकि मतभेद ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि हमारे कंट्री में कई सारे रिलीजियस हैं, कई सारे धर्म के लोग रहते थे, तो सभी के बारे में सोचना और सभी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना ये काफ़ी एक चैलेंजिंग टास्क थे. ठीक है ना. सो दैट इज वाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड सेंट अ कैबिनेट मिशन टू हेल्प इंडिया. And that consists of how many cabinet minister? That consists of 3 cabinet minister. वो कैबिनेट मिशन में कितने कैबिनेट मिनिस्टर थे? 3 कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड. ठीक है, ठीक है.
Okay, hope you have understood. With the initiative of Cabinet Mission, a Constituent Assembly was formed. तो कैबिनेट मिशन के इनिशिएटिव पर ही एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया गया। अब तुम पूछ सकते हो सर कैबिनेट मिशन तो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अब क्या है? तो सिंपली मैं बताता हूँ, देखो कैबिनेट मिशन तो 3 कैबिनेट मिनिस्टर है, वो तो नहीं बनाने वाले हैं हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो नहीं बनाने वाले, हमारे लोगों को ही बनाना पड़ेगा। सो हमारे जो लीडर्स थे उस समय के इलेक्टेड लीडर थे, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया, मतलब सिंपली बोलो तो एक ग्रुप बनाया। जो ग्रुप क्या करने वाले हैं कि इसके बारे में बातचीत करने वाले हैं, सोचने वाले हैं कि किस तरह बनाया जा सके, किस तरह हर लोगों को अधिकार मिले, हर लोगों को राइट्स मिले, उसके बारे में सोच के इसको बनाया जा सके। इसी के लिए एक ग्रुप का फॉर्मेशन किया गया, जिसको बोला गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इससे सहज में मैं नहीं समझा पाऊंगा, शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। So after the cabinet mission, Constituent Assembly was formed on the advice of Cabinet Mission. Hope you have clear up to here. The first इस Cabinet Constituent Assembly का फर्स्ट मीटिंग हुआ 9 दिसंबर 1947 को, 9 दिसंबर 1946, ठीक है ना। And this Constitution Assembly was prescribed by Dr. Sachindrananda Sinha for the first time. Okay, he prescribed the meeting, he prescribed the session. Okay. And Dr. Rajendra Prasad was elected the permanent president of Constituent Assembly. और ये Constituent Assembly का permanent president किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मतलब इनके सोच से आगे बढ़ेंगे और इनके द्वारा हर चीज को किया जाएगा। He was elected as the permanent president of Constituent Assembly. Okay. सो कितना साल लगा या कितने बार उन्होंने मीटिंग किया है, कितने बार बैठे इसके बारे में कि किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है या किस तरह प्रिपेयर करना है, कितने बार बैठे अगर बोले तो 11 बार उन्होंने बैठा, 11 बार, 11 सिटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। एक साथ बैठे, एक साथ बातचीत किए किस तरह बनाना है, किसके बारे में? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इतना इजी तो नहीं है क्योंकि हमारा कल्चर इतना डाइवर्स है, हमारे लोग इतने डाइवर्स है, तो इतना इजी तो नहीं है, तो 11 बार तो लग ही गया है उन लोगों को, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड ड्राफ्टिंग कमिटी ऑन 29 अगस्त 1947। अब फिर से कंफ्यूजन मत होना। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने क्या बोला कि हम जो सारे लोग हैं, हम जो सारे लीडर हैं, हमने तो बातचीत किया किस तरह बनाना है, लेकिन हमको एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाना पड़ेगा। मतलब अर्थात क्या, हमें कुछ लोगों को चुनना पड़ेगा जिसके जो लोग स्पेशलिस्ट है, स्पेशली मतलब जिसका ज्ञान का भंडार हो, जो हर चीज़ के बारे में, भारत के बारे में जानते हैं, कोने कोने तक उनका ज्ञान हो, उनको एक ग्रुप बना देते हैं जिसको बोला गया है ड्राफ्टिंग कमेटी, और उनके द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का उनको मौका देते हैं और उनको पावर देते हैं, क्योंकि उनको हर चीज के बारे में नॉलेज है, ठीक है ना। सो दैट इज व्हाई ए ड्राफ्टिंग कमेटी वाज फॉर्म अंडर द एडवाइस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है ना। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन थे? ड्राफ्टिंग 7 स्पेशलिस्ट मेंबर थे, 7 स्पेशलिस्ट मेंबर थे। और कब बना? 29 अगस्त 1947, ठीक है ना। और वो जो 7 स्पेशलिस्ट थे बिलोंग टू डाइवर्जन फील्ड। इसका अर्थ क्या है? हर फील्ड से कई सारे लोग थे। आर्ट एंड कल्चर से कोई हो सकते हैं, म्यूजिक से कोई हो सकते हैं, लिटरेचर से कोई हो सकते हैं, ठीक है ना। सो हर फील्ड से कोई ना कोई थे जो कि अपने फील्ड में विद्वान थे। सो दे आर वेरी मच स्पेशलिस्ट इन देयर ओन फील्ड, सो दे आर द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। एंड हाउ मच? देयर आर 7। और इनमें से चेयरमैन किसको बनाया गया अगर तुम पूछो तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को चेयरमैन बनाया गया ड्राफ्टिंग कमेटी का। ही वॉज द chairman of drafting committee. Next point, after 3 years of long rigorous labor, the drafting committee prepared the draft copy of the new Indian Constitution, and the same was handed over to its president, Dr. Rajendra Prasad, on 26 November 1949. तो 3 साल मशक्कत करने के बाद उन्होंने, वो 7 लोगों ने 3 साल मशक्कत किया, हर चीज पढ़ा, हर चीज जांचा, everything has been look after, everything has been noticed, and after that finally, that is on 26 November 1949, a draft copy, or you can say a soft copy of Indian Constitution was handed to the permanent president of Constituent Assembly, that is Dr. Rajendra Prasad. अब तुम पूछ सकते हो सर ये ड्राफ्ट कॉपी का अर्थ क्या है? मतलब सपोज देखो, तुम अगर कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो, पहले तो एक सॉफ्ट कॉपी बनाते हो ना, पहले एक ड्राफ्ट कॉपी, उसी को हम ड्राफ्ट कॉपी बोलते हैं। वो फाइनल कॉपी नहीं है, लेकिन उसको दिखाया जाता है कि किस तरह सही हमने ये बनाया, आप देख लीजिए। सो ड्राफ्ट कॉपी को एक्सेप्ट कर लिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, और finally India got a new constitution, that is on कब? 26 January 1950, 26 January 1950, ठीक है ना। सो अब तुम पूछ सकते हो सर इतना गैप क्यों? गैप इसलिए कुछ महीने का गैप, क्योंकि कुछ मतलब काम तो रह जाता है ना, डायरेक्टली तो हर चीज, इतना एक बड़ा चीज बना रहे हैं तो थोड़ा टाइम तो लगता है। सो दैट इज ऑन 26 January 1950 फाइनली द कॉन्स्टिट्यूशन वाज
मेड। होप यू हैव अंडरस्टूड। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, शैल आई स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज आइडियल्स पढ़ के वीडियो बढ़ाएंगे नहीं, इधर ही खत्म करेंगे। 2 पार्ट में इनका नोट्स आएगा, आप दोनों पार्ट आपको देखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। यू हैव टू गो थ्रू द बोथ द पार्ट। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट, द आइडियल्स, आपको किताब में भी मिल जाएगा। आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया। आइडियल्स, तो आइडियल्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन किस आधार पर बेस्ड है। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने से पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, प्रीम्बल क्या है। प्रीम्बल क्या है, प्रीम्बल इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंट्रोडक्शन, जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीम्बल। जैसे कि अगर किसी ने तुम्हारे बारे में पूछ दिया तो हम तो डायरेक्ट नहीं बोलेंगे ना वो मोटा है या काला है, उससे पहले उसका नाम बोल लेंगे कि वो कौन है, ठीक है ना, वो कहाँ से आता है, उसका मम्मी पापा का नाम क्या। सो दैट इज द इंट्रोडक्शन। तो सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने से पहले हमको प्रीम्बल पढ़ना जरूरी है। तो प्रीम्बल पढ़ के हमको पता चल जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हो सकता है, ठीक है ना। सो इसको बोला गया है इंट्रोडक्टरी पार्ट। इंट्रोडक्शन को ही हम बोलेंगे प्रीम्बल, ठीक है। तो प्रीम्बल क्या डिस्क्राइब करता है, 3 चीज डिस्क्राइब, इसका आइडियल्स के बारे में डिस्क्राइब करता है। व्हाट आर द आइडियल्स, व्हाट आर द आइडियल्स, व्हाट आर द आइडियल्स वी हैव, व्हाट आर द आइडियल्स वी हैव, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस आधार पर बना गया है। द प्रीम्बल इज रिगार्डेड एज द सोल, द कंसाइंस एंड द ट्रेजर ऑफ द कीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, ये एक आत्मा है, प्रीम्बल आत्मा है, सोल है बोला, कंसाइंस है बोला, ठीक है ना। अर्थात क्या, मतलब ये नहीं, बिना इसको पढ़े तुम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मतलब आइडिया नहीं कर पाओगे। तो प्रीम्बल को पढ़ना बहुत ही जरूरी है, ये एक सोल है, ठीक है ना। सो एवरी वर्ड इन द प्रीम्बल बियर्स आइडियल्स, फिलोसफी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हर चीज प्रीम्बल में जो लिखा गया है वो आइडियल्स के बारे में बताएंगे, फिलोसफी के बारे में बताएंगे, या ऑब्जेक्टिव के बारे में, क्या लक्ष्य है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या लक्ष्य है, उसके बारे में तुमको बताएंगे। इसलिए देखोगे, अगर तुम्हारे बुक में भी शायद पहला पेज में मिल जाएगा प्रीम्बल, कहीं कहीं सोशल साइंस का बुक में मिल जाता है। सो वी विल फाइंड दैट द प्रीम्बल्स बिगिन विद द वर्ड वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो प्रीम्बल किस तरह स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। में हर पीपल को बोला गया है, वी, आई द पीपल ऑफ इंडिया नहीं बोला गया। हियर वी हैज बीन यूज्ड बिकॉज टू डिनोट ईच एंड एवरी पर्सन हु इज लिविंग इन दिस कंट्री, सो दैट नोबडी फील दैट दे आर बीइंग लेफ्ट आउट। इसीलिए वी द पीपल ऑफ इंडिया बोला गया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, मुझे जो याद है मैं थोड़ा सा बक दे रहा हूँ, ठीक है ना, जरूरी तो नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, शायद इस तरह ही है, मुझे इतना तक थोड़ा सा याद है, तो आप देख लीजिएगा, बुक में मिल जाएगा, ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग। So the maker of the Indian Constitution paid due attention to the manifest every aspect of rich ancient Indian culture and civilization as द गाइडिंग प्रिंसिपल इन द पेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे जो मेकर्स थे, हमारे जो जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, उन्होंने कई अटेंशन, कई नजर, मतलब कई चीज को मद्देनजर रखते हुए, हमारे कल्चर को, एंशिएंट इंडियन कल्चर को मद्देनजर रखते हुए कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में बोला गया है। ओके, तो क्या बोला गया है, तो पहला तो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन पीपल ऑफ इंडिया के लिए, सभी के लिए। अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग टू द पीपल, मतलब इनको बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, या कॉन्स्टिट्यूशन का जो अथॉरिटी है, जिसके पास मतलब सबसे ज्यादा पावर है, या जो इस कॉन्स्टिट्यूशन का देखभाल करने वाला है, उस अथॉरिटी किसको दिया गया है, पीपल को ही दिया गया है। लोग ही इसका अथॉरिटी है, हम ही इनके अथॉरिटी है। पीपल आर द मेन फोर्स बिहाइंड द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पीपल के लिए ही ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। वी आर द मेन फोर्स, पावर केम फ्रॉम द पीपल। पावर किस तरह आएगा, पीपल के थ्रू ही आएगा, थ्रू इलेक्शन, इजंट इट। सो कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग टू द पीपल, नॉट टू एनी रूलर और ग्रुप। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन पीपल के लिए है, नहीं, ना कि कोई रूलर, ना कि कोई ग्रुप के लिए है। अभी तुम पूछ सकते हो सर सरकार कुछ भी क्यों नहीं कर पाता है, सो इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है, उन जो मन जाए कुछ भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। उनको कॉन्स्टिट्यूशन का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करके ही करना पड़ता है, ठीक है। सो सॉवरेन किसके बारे में बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में या प्रिम्बल में, किसके बारे में बताया गया, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सॉवरेन का अर्थ क्या है, इंडिया एक सॉवरेन स्टेट है, मतलब इंडिया एक फ्री स्टेट है, फ्री इंडिपेंडेंट कंट्री है, जो कि किसी फॉरेन पावर के नीचे नहीं है। कोई भी फॉरेन पावर इनको क्या नहीं कर सकता, डायरेक्टली ऑर्डर या डायरेक्टली इंटरफियर नहीं कर सकते हैं। इंटरनली जो भी काम काज करना पड़ता है भारत में, उसके लिए कोई भी इंटरनली इंटरफियर नहीं किया जाएगा। सो इंडिया इज ए सॉवरेन स्टेट, मतलब इंडिया इज नॉट सबऑर्डिनेट टू एनी फॉरेन पावर, मतलब किसी को आंसरेबल नहीं है हम अगर कुछ करें, ठीक है ना,
ठीक है। इंटरनली हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम जवाबदेही नहीं है, मतलब हम किसको जवाब देना जरूरी नहीं है। सो इंडिया इज ए सॉवरेन, वी हैव ए सॉवरेन पावर, ठीक है। Socialist. India is a socialist state. There shall not be inequality among the people of India. All the ways and means of production would be nationalized. Economy shall be based on equal distribution of income and mixed economy. शायद समझ में आ गया होगा, इंडिया एक सोशलिस्ट स्टेट है। इनइक्वलिटी के बारे में नहीं बोला गया है, इंडिया में इनइक्वलिटी को नहीं देखा जाएगा। ओके, पीपल हर चीज मतलब एवरी पीपल इज इक्वल। ओके, इकोनॉमी शेल बी बेस्ड ऑन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इकोनॉमी मतलब इनकम और मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में बताया गया, जिसको मतलब इनकम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इस तरह का सोच रखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। सो दैट इज द सोशलिस्ट। हर चीज हर लोगों को समान अधिकार मिला जाए, उसी को बोलेंगे सोशलिस्ट, ठीक है। इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट, देयर शैल नॉट बी एनी ऑफिशियल स्टेट रिलीजन इन इंडिया। ऑल रिलीजन आर इक्वल टू द आइज ऑफ गवर्नमेंट एंड देयर शैल नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन एमंग द रिलीजन। सेकुलर के बारे में कई बार पूछा जाता है, ध्यान से सुनना। सो सेकुलर का अर्थ क्या है? देखिए, इंडिया में कभी नहीं बोला गया कि तुम ये फॉलो करो, तुम ये धर्म मानो, ये लैंग्वेज बोलो, कभी नहीं बोला गया। जिसका जो मन जाए वही करते हैं। इसका अर्थ क्या है? इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, कोई भी ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नहीं है, कोई भी ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज भी नहीं है, नेशनल लैंग्वेज भी नहीं है। इंडिया में याद रखना, कई लोग सोचते हैं हिंदी हमारा नेशनल लैंग्वेज है। नो, हिंदी इज नॉट एन नेशनल लैंग्वेज, इट इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी एज वेल एज इंग्लिश इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। रिमेंबर, व्हाई नॉट एन नेशनल लैंग्वेज? बिकॉज अगर किसी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस दे दिया गया तो ऐसा लगता है कि बाकी लैंग्वेज को धिक्कार, मतलब धिक्कार शब्द तो मुझे यूज नहीं करना चाहिए, बाकी मतलब लैंग्वेज को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, ऐसा लगेगा। सो दैट इज वाई और सभी रिलीजन, सभी लैंग्वेज को इक्वल स्टेटस मिले। तो इंडिया ने कभी भी नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस किसी भी लैंग्वेज को नहीं दिया गया है। सो हिंदी इज ऑल्सो एन ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश इज ऑल्सो एन ऑफिशियल लैंग्वेज। हाँ, ये बोल सकते हैं कि 22 शेड्यूल लैंग्वेज है जो कि सरकार के द्वारा स्वीकृति किया गया है। दैट मीन्स देयर आर 22 शेड्यूल लैंग्वेज इन इंडिया व्हिच हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो दैट इज द थिंग, होप यू हैव अंडरस्टूड। असमीज इज वन ऑफ देम। ओके, अंडरस्टूड। और किसी को पता नहीं है तो ये लैंग्वेज का कितना वैल्यू है, तो हमारा करेंसी देख लेना। करेंसी जो हमारा नोट है 10 रुपया, 50 रुपया, आप 100 रुपया देख लेना, उसमें जो पीछे लैंग्वेज में लिखा गया, हर लैंग्वेज में लिखा गया। पहला शायद असमीज ही हो, जितना मुझे पता है पहला असमीज में ही लिखा होगा, इतना में देख लेना, ठीक है ना। सो असमीज के अलावा भी कई लैंग्वेज में लिखा गया है। इसका अर्थ क्या है कि हर लैंग्वेज को, उस लैंग्वेज को सरकार के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। सो 22 languages has been recognized by the government of India, but there is no any national language, ठीक है ना, क्योंकि हमारे यहाँ हर धर्म जाति को रेस्पेक्ट किया जाता है। सो दैट इज द थिंग। नाउ डेमोक्रेटिक, सो इंडिया एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। ये में समझाने का मुझे जरूरी नहीं है। दैट मीन्स गवर्न बाय द पीपल। ओके, पीपल रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड बाय द पीपल। रिप्रेजेंटेटिव मतलब जिसको हम चुन के भेजते हैं, उसको किसके द्वारा इलेक्ट किया जाएगा? पीपल के द्वारा इलेक्ट किया जाएगा। रिपब्लिक, इंडिया इज ए रिपब्लिक। द हेड ऑफ द स्टेट, द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द पीपल। द पोस्ट ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट शैल नॉट बी हेरिडिटरी नॉर ए पर्सन सिलेक्टेड बाय। अब देखो, ये हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट बोला गया है, लेकिन हमारा हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट नहीं है, हमारा प्राइम मिनिस्टर है। वी आर ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हेड ऑफ द कंट्री क्या होता है? हेड ऑफ द कंट्री प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है ना। जो भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां में हेड ऑफ द कंट्री या स्टेट कौन होता है? द प्रेसिडेंट होता है, ठीक है ना। उसको किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है? पीपल के द्वारा। सिमिलरली हमारे प्राइम मिनिस्टर को किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है? किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है? थ्रू द पीपल, इजंट इट। वी आर उसको जिता के भेजते हैं, उसके बाद उनकी पार्टी के द्वारा उनको चुना जाता है एज एन प्राइम मिनिस्टर। सो दैट इज, पहले चुनना जरूरी है, मतलब लोगों के द्वारा चुनना और भेजना जरूरी है, और वो इंडिपेंडेंट है और हेरिडिटरी नहीं हो सकता है। मतलब मेरा पिताजी था, मैं बनूंगा, मैं बनने के बाद मेरा लड़का बनेगा, ऐसा नहीं। कोई भी कुछ भी बन सकता है, कोई भी कुछ भी, मतलब सरकार में आने के बाद कोई भी किसी रैंक पे हो सकते हैं, कोई हेरिडिटरी होना जरूरी नहीं है। लेकिन अभी तुम पूछ सकते हो, सर कभी कभी दिखाई पड़ता है, वो तो हर जगह में होगा, मतलब कुछ अच्छा होगा तो कुछ खराब तो रहेगा। एवरी पॉजिटिव थिंग हैज अ नेगेटिव इफेक्ट, ठीक है ना। होप यू हैव अंडरस्टूड। तो उसके बाद ये डायग्राम में मैंने समझाया है कुछ चीज, आप अगर पढ़ लें तो इसको अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। शायद 3, 4, 5 पेज का जो नोट्स था, मतलब जो एक्सप्लेनेशन था, मैंने थ्रू पॉइंट वाइज मैंने आपको समझा दिया। शायद आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर मेरे एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगता है, या मैं जिस तरह एक्सप्लेन करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, अच्छा लगता है, तो वीडियो को शेयर किया कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर दोस्तों को बताएंगे तो शायद मेरा चैनल और ग्रो हो।
ठीक है ना. एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन ए मोर एंड मोर ईजी वे सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इन ए बेटर वे. ठीक है ना. लास्ट में एक चीज़ देख लेते हैं हम, जो मुझे दिखाना जरूरी है आप लोगों को, सिंपली आपको बात आपको समझ में आने के लिए. दैट इज द, देखो पहले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट किसने हमको इंडिपेंडेंस दिया. दैट इज द लेबर पार्टी. लेबर पार्टी ने क्या भेजा, कैबिनेट मिशन कब भेजा, 1946 को. इस तरह के आप टेबल बना लीजिएगा. सजेस्टेड फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने सजेस्ट किया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएगी, 1946 को ही सजेस्ट किया, एक ही सेम ईयर में. फिर उसमें ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ड्राफ्ट कमेटी बनाया गया. ड्राफ्ट कमेटी ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया. कब अडॉप्ट किया, 26 नवंबर 1949. उसके बाद कब लागू हुआ टोटली, दैट इज ऑन 26 जनवरी 1950. सो ये बना लेने से शायद आपको सीक्वेंस याद रहे. वैसे भी मैंने अच्छा से समझाया, आपको सीक्वेंस तो याद रहेगा. ठीक है. इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, क्योंकि लॉन्गर वीडियो अपलोड करना बहुत ही मतलब कठिन है, बहुत ही प्रॉब्लम आता है. सो आई विल अपलोड दिस फर्स्ट एंड आई विल विद इन 2-3 days आई विल गिव द नेक्स्ट पार्ट. होप यू हैव अंडरस्टूड, आपको ये समझ में आया होगा. एंड टिल देन गुड बाय. সকলোৰে ভাল হওক. ঠিক আছে. Thank you.